first of all, welcome to our channel, to Hina and Bhakti. And Thank you trailer so is much. amazing. Haitova trailer is amazing. So, what kind of responses you got till now? Which kind of compliments related to web series Haitova? And which kind of a story in this web series? Can you explain? Should I start? Yeah, yeah. Okay, so Yeah, Haitova you is like yeah, my first Hindi work. So it's like promo release होने के बाद I got huge response. So it's a very serious and very classy. और story has relationship, infidelity, and it's a very interesting story. I mean, I found quite it's not something कि जो आप हर रोज देखते हो तो relatable something, but I think it's very interesting and serious kind of story. वो आज से streaming है, आप लोग अगर देखेंगे तो पता चलेगा, but yeah, response बहुत ही अच्छा. Bhakti, you. I had like good response. Like a lot of my fans and also my friends and family, they were like quite excited to see me going completely out of my comfort zone because I'm playing a lesbian in the show. And also, the show is about breaking all the stereotypes. So, if you see, it basically tries to show that love knows no gender, love knows no age. Like, if there's love, everything is fair in love and war. So, like my friends were really happy to like see me do a very different character, and I got a good response, and the show itself got a very good response. I think we were even trending, the trailer was trending a lot. I think it was in the top 50 Yeah, list. yeah. So, But can you explain let's your hope for the best. can you Yeah. explain your character little more? So my character is Mithila. My character name is Mithila. She is like sponge. uh, इतना कुछ करती है, इतना कुछ मतलब she is something जो she's trying so hard अपने शादी को बचाने के लिए. वो अपना एक she is reacting in certain way. वो क्यों किस लिए वो हम लोगों को पता चल जाती है एंड में. And that girl is very वो अपने स्कार्स को लेके चलती है और काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती है. एंड it's very demeaning for a woman कि अपने हस्बैंड से कुछ ऐसा प्रपोजल मिले. तो शी इज लाइक स्पंज, सब कुछ वो अपने अंदर कंज्यूम कर करके लास्ट में जाके हम लोग जब देखते हैं ना मिथिला क्यों ऐसा बिहेव करती है, क्यों ऐसा रिएक्ट करती है. इवन फॉर मी इट इज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि इससे पहले मैं जो कैरेक्टर प्ले किया है समथिंग इज वेरी न्यू फॉर मी. और जैसे कि मैंने कहा कि पहला हिंदी वर्क, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. बट कैरेक्टर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर तो स्ट्रीमिंग होने के बाद ही पता चलेगा. आई लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर यू, so please watch. Bhakti, your character. So my character is very adamant and very strong-headed, and I come out of the closet towards the latter part. I won't reveal the story when I get caught, and family, of course, they're not able to understand. My parents don't understand. My brother does not understand, and they really make me feel ashamed. That how can you fall in love with someone from the same gender? But मैं फिर भी very adamant हूँ कि नहीं, प्यार तो प्यार होता है ना. So that's what my character is. I fight for my love and I fight for what I want in life. काफी जिद्दी character है. It was a lot of fun doing that part. ओके, सो कितना रिलेटेबल ये कैरेक्टर है आप दोनों के लिए, जिस तरह का आप निभा रही हैं कैरेक्टर? रिलेटेबल तो जैसे कि मैंने कहा आपको रिलेटेबल है ही नहीं बिल्कुल. फर्स्टली आई एम नॉट मैरिड, आई एम अ सिंगल वुमन. एंड मिथिला is someone Mithila is someone who is like trying hard कि अपने शादी को बचा पाए. तो उसके लिए वो काफी कॉम्प्रोमाइजेस भी करती है फ्रॉम द मॉडर्न ग्राउंड. So
ऐसा नहीं कि मिथिला प्ले करते टाइम ऐसा लगा कि बहुत कुछ रिलेटेबल है, कि इन पर्सन अगर ऐसा कुछ हो तो लाइक आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। तो ज्यादा कुछ रिलेटेबल नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड मिथिला वेरी वेल, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस, इतना वो गिल्ट लेके क्यों फिर भी इतना कुछ करी, एंड फ्रॉम फ्रॉम हस्बैंड वो इतना ऐसे प्रपोजल उसे क्यों मिलता है जो कि एक वेरी डिमीनिंग फॉर अ वुमन। सो उसके बहुत सारे स्कार्स हैं। I don't think Mithila is for me is like ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसे हम हर रोज देखते हैं और which is very relatable, but I can understand her pain, कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो डिसीजन ले रही है, कहाँ से वो so Mithila is not someone जो हम बहुत ही frequently देखते हैं, so I think Mithila is very relatable for anyone. ओके, सो जिस तरह की ये स्टोरी ट्रेलर से दिख रही है बहुत ही यूनिक लग रही है, सो क्या कुछ समाज में सुधार लाएगी या फिर ऑडियंस को क्या कुछ अलग दिखने को मिलने वाला है इस वेब सीरीज में, ये जानना चाहूँ। So ये हाई तौबा में there are 4 stories. Yeah. 2 LGBTQ है और one is also about the age and one is her story infidelity. So ये बस यही बोलना चाहता है कि everything is fair in love. Like I don't know much about your story. I'll watch it for sure. But वही कि प्यार करते हो तो just fight for it, you know. कोई बाउंड्रीज नहीं होती प्यार में और कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि प्यार मर्द को औरत से ही होना चाहिए, किसी से भी हो सकता है। एज नहीं देखी जाती है, जेंडर नहीं देखा जाता है। डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, लाइक डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए तुम अपने प्यार को मत एक्सेप्ट करो। इफ यू आर इन लव, इफ यू लव इट, जस्ट गो फॉर इट। आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, यू नो, कि दुनिया तो बोलेगी हाय तौबा बाप रे, बट उससे वो लोग जज कर रहे हो, उससे तुम अपने आप को मत रोको। You know, that's what I think is the gist of the whole series. हुई ना। हाँ, मुझे एक चीज और वो लगता है कि टैबू जो होते हैं वो अपने अपने दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई डोंट लिव विद माय पेरेंट्स, मैं काफी सालों से रहती हूँ। ओके, आपकी आवाज कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। या अब better. हाँ, तो मैं वो बोल रही हूँ ना, जो रेस्ट्रिक्शन है सोसाइटी का वो अपने अपने दिमाग में होता है। जैसे कि मैं काफी सालों से अकेले रहती हूँ, आई डोंट लिव विद माय पेरेंट्स, तो मेरे लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, खुद कमाती हूँ, खुद काम करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, आगे कुछ करना है लाइफ में। और एक चीज और है कि सबका, और मैं भी जजमेंटल नहीं हूँ, उसको जज नहीं करूंगी, पर अपना अपना रीजन होता है सबके पास। तो सबके पास भी रीजन है, अपना रीजन भी मेरे पास। तो यू नो टैबूज वो सब दिमाग में होते हैं, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। टैबू अपना अपना होता है, किसी ने बाउंड्रीज लिख के ऐसा नहीं दिया कि Okay, so how was your experience during shooting? Oh, it's lovely because so डायरेक्टर है रोहन घोष। तो हम लोगों ने इससे पहले भी काम कर चुके हैं बंगाली में, तो दिस इज लाइक थर्ड टाइम वी आर वर्किंग टुगेदर। हम लोगों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल डिटेक्टिव सीरीज किया है बंगाली में, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल। पहला एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या चाहते हैं। So for understanding it class, so it was very nice working with him again. और जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी काम है, I am really excited, so looking forward. Okay, and you, Bhakti? Well, it was a lot of fun. Like we shot in Goa, और मेरे लिए तो it was actually exploring my sexuality also because I played a lesbian and process अच्छा था. We were like given workshop, like समझाया गया था कि जानो, पहचानो, समझो. So it was a very different experience for me. एंड बहुत ड्रामा भी है, आप जैसे कि देखोगे कैसे मैं मॉम डैड से झगड़ती हूँ, लड़ती हूँ. सो इट वाज अ गुड पार्ट नोइंग द जर्नी ऑफ सोनल, कि कैसे लोग जब भी प्यार एक्सेप्ट नहीं होता है कैसे वो लोग फाइट करते हैं. तो समझने में मजा आया, परफॉर्म करने में मजा आया. आई होप ऑडियंस ऑल्सो विल लव इट. Okay,
तो अगर हाई तौबा की बात करूँ और थ्री यूएसपी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हाई तौबा की थ्री यूएसपी की ऑडियंस को पसंद आएगी इसमें सबसे ज्यादा? आप दोनों के हिसाब से क्या लगता पहले तो आपका हाँ, पहले तो आपका प्रोमो में ही है ना कि सोशल बाउंड्रीज जो है उसको तोड़ना है। है? ओके। अगर कुछ दिलो दिमाग में है सोशल बाउंड्रीज वो एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज रिलेशनशिप, लव और अपनी मोरल्स, कुछ भी हो, जो भी बाउंड्रीज सोसाइटी ने हम लोगों ने या खुद खुद हम लोगों ने बना रखा है अपने लिए, तो वो एक तोड़ने का वो जज्बा देंगे। हाय तौबा, आगे बढ़ो, फील फ्री, सब अपना अपना लाइफ है, अपने दिमाग है, सो यूज योर ब्रेन एंड डू वर्क एंड बी गुड। ओके। Yeah, I think the 3 USP will be जिद है, बहुत जिद है, फाइट है, सब फाइट कर रहे हैं अपने प्यार के लिए। और तीसरा कि आई थिंक लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग, लव इज अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो आज रिलीज होने वाली है, कितनी एक्साइटमेंट है या फिर कितनी नर्वसनेस है, क्या कुछ है फीलिंग, ये जानना चाहूंगी आप दोनों से। भक्ति। ना ओके, तो ये ना। ओके, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। जैसे कि कहा कि हिंदी पहला काम है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा होगा। और मिथिला मिथिला इज यू नो एक नया कैरेक्टर था, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा डायरेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुकी, उसको एक अंडरस्टैंडिंग था एंड इट इज अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट एज वेल। तो मैंने कोशिश की है जितना हो सके मिथिला को कन्विंस करने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, ऑडियंस को अच्छा लगे। So let's see. But I'm really hopeful. Nervous नहीं हूँ, but yeah, एक national platform में आप पहला काम करो तो आपका वो एक्साइटमेंट एक अंदर होती है। So let's see, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में तो मैंने काफी काम कर चुकी हूँ, so I know audience here. So यहाँ पे it's something very new to me. So let's hope for the best. And Bhakti, what do you want to say? I'm really excited and nervous because I've never worked with All Balaji before. This is my first time. And also, I've gone out of my comfort zone. I've embraced another character. So excited भी हूँ कि I hope the response is good, but nervous भी हूँ कि देखते हैं अभी audience कैसे react कर पाएगी. But mostly I'm very optimistic that it will be good because we worked really hard on the show. सब लोग ने मिलके इतना मेहनत किया और इतना कम टाइम में हमने ये we've come out with the show, right? It was in like such a short span. So yeah, looking forward. Let's see what the response is. तो क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप दोनों के इसके बाद? मेरे तो यहाँ पे काफी सारे फिल्में जो हैं वो कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, क्योंकि शूटिंग में काफी रेस्ट्रिक्शन हो गई, क्योंकि एक बहुत ज्यादा गैदरिंग तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। सो फिलहाल अभी ये वेब सीरीज का काम चल रहा है, मैं यहाँ पे बंगाली वेब सीरीज कर रही हूँ। सिनेमा का तो कुछ पता नहीं, इस वेरी आंसर का, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। शूट यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि 50 से ज्यादा आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो, सिनेमा हॉल्स आर शटिंग डाउन। सो लेट्स सी, आई थिंक हो जाएगा पहले जैसे सिनेमा हॉल पे जाना, रिलीज करना है, वो सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बट फिलहाल ओटीटी से कम हम लोग कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड ओटीटी पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने सारे एक्टर्स को मौका मिल रहा है। सो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ओटीटी पे, सो सिनेमा का पता नहीं। ओके, एंड भक्ति, यू? Yeah, same here. I'm working on a web show, but again वो थोड़ा delay हो गया है. Like let's see जून जुलाई में कभी होगा. But web show चल रहा है और I shot for a film in March. So let's see how the post production works and when they release it. But फिलहाल तो अभी and just commercial.
ओके, सो लॉकडाउन कैसा जा रहा है आप दोनों का? क्या कुछ काम कर रही हैं आप दोनों? तो इना का तो शूटिंग चल रहा है, सो आपका क्या कुछ हो रहा है? हेलो, तो इना, हेलो। Yeah. I am working Hello. on my fitness and reading books. Those are या कंटिन्यू। हाँ, six हेलो। पर and a deja vu. Whatever happened last year, the same thing is happening this year. And yeah, that's about it. I've been spending time with my family. ओके, सो लास्टली आप अपने फैन से आप दोनों क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज रिलीज हो रहा है, और क्या कुछ अपने वेब सीरीज के बारे में और एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे अपने फैंस ऑडियंस को? I think I'll just tell everybody that don't settle for whatever you have in your life. Fight for whatever you want, and you ultimately make your own life. Just live it on your terms and conditions. ओके, तो हिना। या सबसे पहले वही बोलूंगी कि प्लीज हाय तौबा देखना। और जैसे कि अभी जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन है, तो नेचुरली आप लोग बाहर नहीं जा सकते, सिनेमा हॉल पे नहीं जा सकते, तो घर पे रहिए और सेफ से रखूँ। और बिल्कुल हाय तौबा देखिए। जो हाय तौबा का जो टैगलाइन है कि आप बैरियर को भागो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जियो, फिर जो जो यू नो डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। बट हाँ, घर पे रह के हाय तौबा देखना वो बिल्कुल भूलना। Yeah, valid point. Thank you so much. Lovely to talk. Thank you so much. Thank Thank you. you, Bye Preeti. bye. Nice talking to you. Bye bye. Take care.